Assalamualaikum students. Today we will study the case of atrial fibrillation. After this case, we will be able to interpret clinical signs and symptoms, evaluate laboratory data, evaluate treatment options, state course of therapy, describe a pharmaceutical care plan to include advice to clinicians, describe the prognosis and long-term complication, describe the social pharmacy issues which could include supply, example complex treatment at home, concurrence, compliance and lifestyle issues. The scenario is Mr. John, 61 years, is admitted to the emergency assessment unit at his local hospital complaining of palpitation, breathlessness and dizziness. He has a 5-day history of some dizziness and palpitation. In the last 24 hours, he complained additionally of shortness of breath. He collapsed at home and was then admitted to hospital via emergency department. ओके पेशेंट जो है 61 ईयर्स ओल्ड है, मेल है, इमरजेंसी में जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और कंप्लेन ये थी कि पेशेंट को पैल्पिटेशन थी, ब्रेथलेसनेस था, डिजीनेस था और ये 5 डेज़ हिस्ट्री थी कि पेशेंट को कंटिन्यूसली डिजीनेस और पैल्पिटेशन का इशू हो रहा था, कंप्लेन हो रही थी. लास्ट 24 आवर्स में जो है एडिशनली जो कंप्लेन हुई, पहले मतलब 5 डेज़ तक डिजीनेस और पैल्पिटेशन की कंप्लेन थी और फिर 24 घंटे के अंदर पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो गई एंड सडनली जो है पेशेंट जो है होम पे कोलैप्स हो गया एंड वाज देन फिर आफ्टर कोलैप्स फिर जो है इमरजेंसी में लेके आया गया हॉस्पिटल में. He experienced similar symptoms 2 months ago but did not seek medical advice at the time and seemed to recover quickly. On examination and review by the admitting the doctor, the following information is obtained. ठीक है, इससे पहले 2 महीने पहले भी यही सेम सिम्टम्स पेशेंट ने फेस किए थे, लेकिन एट दैट टाइम पेशेंट ने मेडिकल एडवाइस नहीं ली थी, ना ही डॉक्टर को कंसर्न किया था क्योंकि वो बहुत जल्दी रिकवर हो गया था. ऑन एग्जामिनेशन एंड रिव्यू, ठीक है, फर्दर इंफॉर्मेशन जो हमें प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की मिली है वो ये मिली है कि पेशेंट 5 years ago नो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़. ठीक है, हाइपरटेंशन है पेशेंट को 5 साल से और कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की. पेशेंट इज़ अ रेगुलर सिगरेट स्मोकर ग्रेटर देन 20 पर डे and drinks approximately 20 units of alcohol per week. पेशेंट जो है सिगरेट स्मोकर है और जो है वो ग्रेटर देन 20 सिगरेट यूज़ करता है पर डे और अप्रॉक्सीमेटली जो है 20 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल भी पर वीक ड्रिंक करता है. ड्रग हिस्ट्री में नो नोन एलर्जीज. मिस्टर जॉन हैड बीन प्रिस्क्राइब लिजनोप्रिल टैबलेट 20 mg once daily but was poorly complained with treatment. ठीक है, कोई एलर्जी नहीं है पेशेंट को और मिस्टर जॉन जो है लिजनोप्रिल टैबलेट लेते 20 mg once daily. साइन एंड सिम्टम्स ऑन एग्जामिनेशन में ब्लड प्रेशर 100/70, हार्ट रेट इरेगुलर है 175 बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट जो है 25 ब्रेथ्स पर मिनट है, नो बेसल क्रैकल्स इन द लंग्स. ऑन ऑल दीज साइन एंड सिम्टम्स एंड एग्जामिनेशन डायग्नोसिस इज एट्रियल फिब्रिलेशन. अब कैसे डायग्नोज किया एट्रियल फिब्रिलेशन वी विल डिस्कस. रेलेवेंट टेस्ट रिजल्ट, फुल ब्लड काउंट, liver function test, electrolytes and renal functions were all normal at admission and throughout the admission to discharge. ठीक है, पेशेंट का जो है कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट, रेनल फंक्शन सब जो है नॉर्मल था एडमिशन के टाइम पे भी और एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज पे भी. मिस्टर जॉन इज सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड टू द कार्डियोलॉजी वार्ड वेयर his continuing atrial fibrillation is later confirmed as persistent atrial fibrillation. As the ward clinical pharmacist, you are responsible for daily review of drug chart and advice to medical and nursing staff on all aspects of drug treatment for patient on the ward. Acha, after going through all this case, the questions arises from this case are these and we have to sort out all these questions.
The first question is what is atrial fibrillation. मतलब केस को देख के how we diagnose it is atrial fibrillation. So first we should know what is atrial fibrillation. Next is what are the most common signs and symptoms exhibited by the patients with atrial fibrillation. Indicate which of these signs and symptoms the patient exhibiting. What are the two options in terms of treatment strategy that may be employed to manage the atrial fibrillation. Indicate what would be the most appropriate strategy that you would recommend to the doctor managing this patient, and why you think this is the case. Assuming a rate control strategy is to be used, what class of drug should be first line treatment for this patient. ठीक है, and first line drug was contraindicated. What class of drug could be used as an alternative treatment. अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी कंट्रोल स्ट्रैटेजी की है, क्लास ऑफ ड्रग हमने बताया कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पेशेंट की ये होनी चाहिए, और अगर इन केस वही फर्स्ट लाइन ड्रग पेशेंट को कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो फिर हमारे पास अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या होगा, हमें वो भी डिस्कस करना. व्हाट पेशेंट पैरामीटर्स शुड बी मॉनिटर्ड टू असेस थेरेपी विद द यूजुअल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एंड व्हाट इज़ एन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट टारगेट फॉर सच पैरामीटर्स. What are the two options in terms of antithrombotic prophylaxis in this patient and what are the potential side effects of each. State which of these is the most appropriate for this patient and why. ठीक है, एंटीथ्रोम्बोटिक प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट देनी है तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं एंटीथ्रोम्बोटिक प्रोफिलैक्सिस के लिए, और अगर हमारे पास हैं दो ऑप्शंस तो उनके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं. Assuming the patient is to be discharged on beta blocker and aspirin, what counseling does he require. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था what is atrial fibrillation. Atrial fibrillation is an arrhythmia in which the electrical activity in the atria is disorganized. ठीक है, atrial fibrillation को हम arrhythmia कह रहे होते हैं. arrhythmia itself is saying कि rhythm की absence है, एब्सेंस ऑफ रिदम, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थ्रू एट्रिया पास हो रही होती है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है. द एवी नोड रिसीव्स मोर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दैन इट कैन कंडक्ट एंड मोस्ट आर ब्लॉक्ड रिजल्टिंग इन इरेगुलर वेंट्रिकुलर रिदम. ठीक है, एवी नोड जो है आपका एट्रियल नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को बहुत ज़्यादा रिसीव करता है, कुछ ब्लॉक हो जाती हैं ड्यू टू एन इरेगुलर वेंट्रिकुलर रिदम. तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि एट्रियल फिब्रिलेशन होता क्या है. ठीक है, कि एब्सेंस ऑफ रिदम, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, दिस इज कॉल्ड एट्रियल फिब्रिलेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट आर द मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स exhibited by the patient with atrial fibrillation. Indicate which of these signs and symptoms the patient is exhibiting. ठीक है, अब एट्रियल फिब्रिलेशन की क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और किस तरीके से हम रिलेट करते हैं इन साइन एंड सिम्टम्स को पेशेंट से. सिम्टम्स हैं ब्रेथलेसनेस, डिस्निया, पैल्पिटेशन, सिंकोप और डिजीनेस, चेस्ट डिस्कम्फर्ट और स्ट्रोक, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक. ठीक है, ये सिम्टम्स हैं. साइंस इज़ इरेगुलर पल्स, वेंट्रिकुलर रेट यूजुअली 120 to 180 beats per minute. ECG shows fine oscillation of baseline with no clear P waves, rapid and irregular QRS rhythm. Causative factors, the patient hypertension is potentially causative factor. ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने सिम्टम्स भी बता दिया कि ब्रेथलेस है, डिस्पनिया है, पाल्पिटेशन है, डिजीनेस, सिंकोप, चेस्ट डिस्कम्फर्ट और स्ट्रोक, ये सब जो है सिम्टम्स हैं. साइंस में इरेगुलर पल्स है, यूजुअल वेंट्रिकुलर रेट जो 120 to 80 बीट्स पर मिनट है, ECG फाइन ऑक्सीलेशन शो कर रहा है. ठीक है, और जो मेन काउजेटिव फैक्टर है जो पेशेंट में है वो ये है कि हाइपरटेंशन है. नेक्स्ट है व्हाट आर द टू ऑप्शंस इन टर्म ऑफ ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी. What are the two options in terms of treatment strategy that may be employed to manage atrial fibrillation? Indicate what would be the most appropriate strategy that you could recommend to the doctor managing this patient and why you think this is the case.
हम ऐसे कौन से दो ऑप्शंस या ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी को चूज़ करेंगे ताकि हम मैनेज कर सकें एट्रियल फिब्रिलेशन को. द टू ऑप्शंस आर रेट कंट्रोल और रिदम कंट्रोल. ये दो ऑप्शंस इसमें, या तो हम रेट को कंट्रोल करेंगे या फिर उसकी रिदम को कंट्रोल करेंगे. रेट कंट्रोल इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दिस पेशेंट एज ही इज़ ओवर 65 ईयर्स. इन दोनों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो रेट कंट्रोल है, क्योंकि पेशेंट की एज ग्रेटर देन 65 है. एट्रियल फिब्रिलेशन appears to be of long standing and may have present 2 months ago when the patient experienced similar episode. ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन जो है पेशेंट को 2 months ago से ही था, क्योंकि उसको सिमिलर एपिसोड्स एक्सपीरियंस कर रहा था. हिज लिसनोप्रिल शुड बी स्टॉप्ड एज ही विल गेट ब्लड प्रेशर कंट्रोल विद बीटा ब्लॉकर्स. ठीक है, लिसनोप्रिल को हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं. नेक्स्ट इज एज्यूमिंग अ रेट control strategy to be used. What class of drug should be first line treatment for this patient? If the first line drug was contraindicated, what class of drug could be used as alternative treatment? कंट्रोल स्ट्रेटजी के लिए अगर हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं और इन केस वो फर्स्ट लाइन ड्रग जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो हम ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अ बीटा ब्लॉकर इज सुटेबल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर रेट कंट्रोल. ठीक है, रेट कंट्रोल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? बीटा ब्लॉकर है. अ रेट लिमिटिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कुड बी यूज इन दोज ऑन होम बीटा ब्लॉकर इज़ नॉट सुटेबल सच एज एस्थमेटिक. इन केस अगर पेशेंट को अस्थमा का इशू होता तो हम बीटा ब्लॉकर से स्विच करके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे आ जाते हैं, लेकिन पेशेंट को अस्थमा का इशू नहीं है तो वी विल स्टे ऑन बीटा ब्लॉकर. What patient parameters should be monitored to assess therapy with the usual first line treatment, and what is an appropriate treatment target for such parameters? Titrate dose against heart rate. The target is for resting heart rate of less than 90 beat per minute and an exercise heart rate of less than 110 beat per minute inactive or 200 minus. Next is, what are the two options in terms of antithrombotic prophylaxis in this patient? What are the potential side effects of each? State each of these in the most appropriate for this patient and why. ठीक है, इसके अंदर एंटीथ्रोम्बोटिक प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट के लिए दो ऑप्शंस पूछे हैं और उनके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें बताने हैं. तो साइड इफ़ेक्ट्स हमारे पास जो पोटेंशियल थेरेपी है वो जो हमारे पास थेरेपी वो वेराफ्रिन भी जा सकती है और एस्प्रिन भी जा सकती है. उनके साइड इफ़ेक्ट्स में वेराफ्रिन का हैमरेज, हाइपर सेंसिटिविटी, रैश, एलोपेशिया, डायरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, स्किन नेक्रोसिस, हेपेटिक डिसफंक्शन दैट इज जॉइंडिस, पैंक्रियाटाइटिस. एस्प्रिन का साइड इफ़ेक्ट है माइल्ड stomach upset, irritation, example is heartburn. Occasionally severe gastrointestinal side effects may occur which may lead to stomach ulcer. Evidence severe GI pain, black tarry stool, vomiting blood, occasionally ringing or buzzing in the ears. In very rare cases only with larger doses salicylate may occur. Effects include dizziness, ringing or buzzing in the ear, nausea, headache and confusion. The overall risk of stroke should be assessed for each individual with atrial fibrillation. It should also be reassessed regularly as the person's risk of stroke will change over time. The individual's attitude to anticoagulation will strongly influence the cost-benefit of treatment and should always be taken into account. ठीक है, हम इंडिविजुअल्स का देखते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो एंटीकोगुलेशन थेरेपी करते हैं, क्योंकि कॉस्ट भी हमें देखनी होती है ट्रीटमेंट के लिए ताकि पेशेंट ईजिली जो अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रख सके. द डिसीजन टू यूज़ वाराफ्रिन और एस्प्रिन शुड बी अल्टीमेटली बी बेस्ड ऑन द बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल ओवरऑल रिस्क ऑफ स्ट्रोक कंपेयर्ड विद द रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स एंड देयर पर्सनल प्रेफरेंसेस. ठीक है, अब जो डिसीजन है वाराफ्रिन और एस्प्रिन का वो अल्टीमेटली बेस करता है इंडिविजुअल के स्ट्रोक के ऊपर
और एडवर्स इफेक्ट के ऊपर और उसके पर्सनल प्रेफरेंसेस के ऊपर. In this case, the patient is 61-year-old with additional risk factors for stroke, hypertension and smoking. He is at moderate risk and could be offered either aspirin or warfarin. इस केस में पेशेंट 61 years old है, एडिशनल रिस्क फैक्टर्स और एस्पिरिन में हाइपरटेंशन और स्मोकिंग भी पेशेंट करता है, तो मॉडरेट रिस्क है, तो ही कुड अफोर्ड एस्पिरिन भी कर सकता है और वारफारिन भी. बट इसके अंदर अब हम ये देखेंगे पेशेंट कि पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, डिपेंडिंग, क्योंकि कॉज डिपेंडेंसी भी हम देख रहे होते हैं. नेक्स्ट इज एज्यूमिंग द पेशेंट इज़ टू बी डिस्चार्ज्ड ऑन बीटा ब्लॉकर एंड एस्पिरिन, व्हाट काउंसलिंग डज ही रिक्वायर. Mr. John needs to be advised to take his medication regularly. If he experiences any problem, he should talk to his general physician or a pharmacist. Last previously उनको लास्ट टाइम भी उन्हें जब पेशेंट को ये सिम्टम्स अपेयर हुए थे तो पेशेंट ने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया था, लेकिन इस टाइम पे पेशेंट को एडवाइस की गई है कि एक तो मेडिकेशन रेगुलरली लेनी है और दूसरी अगर वो एक्सपीरियंस करते हैं कोई भी प्रॉब्लम को तो ही शुड कंसल्ट जनरल फिजिशियन और अ फार्मासिस्ट. एज ही इज़ पोरली कंप्लाइंट, इट इज़ वर्थ वाइल एक्सप्लोरिंग विथ हिम वाई ही डिड नॉट टेक हिज प्रीवियस थेरेपी रेगुलरली. लिजनोप्रिल की जो उनको ब्लड प्रेशर की प्रिस्क्राइब की गई थी, पेशेंट जो है उसको रेगुलरली नहीं ले रहा था, तो पूअरली कंप्लाइंट है क्योंकि पेशेंट नहीं ले रहा था लास्ट टाइम मेडिसिन. तो इस चीज़ पे भी हमें पेशेंट को एडवाइस करनी है, काउंसिल करनी है दैट ही हैज़ टू टेक द मेडिकेशन रेगुलरली, अदरवाइज जो इनकी कंडीशन है और ज़्यादा सीवियर हो सकती है. ही शुड बी एडवाइज टू टेक हिज एस्पिरिन इन द मॉर्निंग आफ्टर फूड. The tablet may be dispersed in water or taken whole with some water. The beta blocker should be taken regularly at the time prescribed at the same time each day. Swallowed whole with drink of water. Mr. Sean should be told that if he experiences side effects with his medications such as dizziness, he should not stop taking it suddenly, but should speak with his general physician or pharmacist. अब पेशेंट की काउंसलिंग करना है इसके अंदर, जिसके अंदर पेशेंट को एडवाइस की कि एस्पिरिन जो है मॉर्निंग में लेनी है आफ्टर फूड, और जो है इट शुड बी डिस्पोज इन वाटर, और बीटा ब्लॉकर को रेगुलरली लेनी है एट द सेम टाइम जो टाइम पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है. ठीक है, और उसी और जो है टैबलेट को होल स्वॉलो करना है विद द वाटर. और मिस्टर शॉन को ये भी पता है कि अगर वो इन मेडिकेशन की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं जैसे कि डिज़ीनेस वगैरह, तो उनको स्टॉप नहीं करनी है मेडिकेशन लेना, बल्कि उनको कंसल्ट करना है फिर जनरल फिजिशियन को या फिर फार्मासिस्ट से. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट केस इज़ ऑफ एंजाइना. लेट्स सी द सिनेरियो. Mr. AG, a 57-year-old taxi driver of Indian origin, attend your community pharmacist with new prescription for glycerol trinitrate spray, 400 microgram. ठीक है, 57-year-old taxi driver है मिस्टर AG. कम्युनिटी फार्मेसी में आए हैं विद अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट स्प्रे जो 400 माइक्रोग्राम्स की है. 1 or 2 puffs एज रिक्वायर्ड. ज़रूरत पड़ने पे 1 या 2 puffs लेंगे ज़रूरत पे. You dispense this item and speak with him and he tells you that his general physician thinks he has angina and he has asked him to use the spray the next time he gets any minor chest pain or tightness. ठीक है, जब हम मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं तो पेशेंट ने बताया कि जनरल फिजिशियन ने बोला है कि अगर इसे चाइना पेन हो, माइनर चेस्ट पेन हो या टाइटनेस हो तो ये स्प्रे यूज़ करना है. यू काउंसिल मिस्टर एजी ऑन द करेक्ट यूज़ ऑफ द स्प्रे. मिस्टर एजी रिटर्न्स अ फ्यू डेज लेटर कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक फॉलोइंग द यूज़ ऑफ द स्प्रे. कुछ दिनों बाद मिस्टर एजी आए और इन्होंने कंप्लेन की कि उन्हें हेडेक हो रहा है आफ्टर यूजिंग द स्प्रे. ही इज़ रिलक्टेंट टू यूज़ द स्प्रे अगेन. अब वो जो है दोबारा इस स्प्रे को यूज़ करना नहीं चाह रहे क्योंकि इस स्प्रे के यूज़ के बाद से उन्हें हेडेक शुरू हो गया था.
He asked your advice on managing his headache. He also smokes about 5 cigarettes a week and asked if he should not stop. और उन्हें फर्दर जो है मशवरा लिया कि जो है वो 5 सिगरेट्स यूज़ करते हैं इन अ वीक एंड आस्क इफ़ ही शुड स्टॉप नाउ. नाउ द क्वेश्चन इज, सो ये केस आप लोगों को खुद सॉल्व करना है एंड देन यू हैव टू सेंड थ्रू द LMS. दिस इज़ अ काइंड ऑफ योर this is an assignment for you, that what is angina, what typical symptoms could a patient with angina present with, what are the risk factors for developing angina, what if any risk factors does Mr. AG have for developing stable angina, what group of drugs does GTN spray belong to, what are the side effects of GTN spray, how would you counsel Mr. AG on the use of this spray, what other formulation of GTN are available, is there advantages and disadvantages, Mr. AG's headache may be caused by his use of GTN spray, what can you recommend to him to manage his headache, what advice would you give Mr. AG in relation to his smoking. इन 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स फाइंड आउट करना है फ्रॉम द ऑथेंटिक बुक्स और रेफरेंस ऐड करने हैं एंड देन LMS पे अपलोड करना है सर.